में काबिलियत होती है वो हर पल से कामयाबी चुरा लेते हैं। वो दूर बैठकर मंजिल को देखते नहीं, वो राहों को मंजिल बना लेते हैं। जी हाँ, कुछ होते हैं ऐसे निराले लोग जो बड़े होने का इंतजार नहीं करते। वो बचपन से ही हर मौके को एक अचीवमेंट बना लेते हैं। जब कोई बच्चा बचपन में ही अपनी आने वाली बुलंदियों की झलक दिखा देता है तो वो कहलाता है यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाल। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर इज समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अनोखे बच्चों की इस दुनिया में आपका गाइड और साथी, जो अब बुलाने वाला है आज के यंग जीनियस को। एक ऐसा जीनियस जिसका आईक्यू लेवल 180 है, वो भी सिर्फ 6 साल की उम्र में, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 से 3% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स मीट ऋषि शिव प्रसन्ना फ्रॉम बेंगलुरु। Did you know how potato chips came into existence? No. Video games were invented by a person called father of video game. Do you know why only these particular animals like elephant, horse and camel use in chess? My name is Rishi Shivpi. I live in Bangalore. I am 6 years old. At the age of 3, he started narrating about the solar system, universe, planet, numbers, shapes. So we were really, surprised to see his knowledge. During one of my class visits, when I happened to enter Rishi's classroom, then I brought in a 9th standard textbook, a geography textbook. I told him, Rishi, just go about this. And he read about volcanoes, totally at ease. That's when I realized, okay, this child is extraordinary. He's brilliant. I developed an interest at the age of 4 towards space, science, technology, and computer science. At the age of 5, I learned to code, and now I have developed many user-friendly apps. I want to become a scientist who helps needy people and helps protect Mother Earth. Hi. You want to shake hands with me? Only namaste. Only namaste. Okay, namaste Rishi. आइए बैठिए, please sit down. Will you sit there? Thank you. You develop apps. You know science and technology. But I know one thing which I saw there, and I want to ask you that. You like Harry Potter? Yes, very much. Why? I love how Harry Potter goes on exciting adventures like Harry Potter and the Philosopher's Stone, the Chamber of Secrets, the Prisoner of Azkaban, the Goblet of Fire. How many books are there? 7. 7. Yes. How long did you take to read all the books? First time I read 3 months. Huh. Second time I read 3 days. 3 days. Yes. Like as soon as I wake up, I start reading. But tell me, I'm given to understand that you've actually written a book. Yes. What have you written? Learn vitamins with Harry Potter. Learn vitamins with Harry Potter. Yes. How can you learn vitamins with Harry Potter? Harry Potter gets a dream that Voldemort's soul was stored in 6 Horcruxes. Yes. And he also dreams about Vitamin World giving him all the strength he needs to defeat those Horcruxes. So he eats vitamins and he gets power. Yes. Why are these vitamins so important? They help in healthy body function. What does vitamin A do? Vitamin A helps you get better eyesight. What does vitamin B do? Vitamin B, also known as B complex vitamins, are actually vitamins that are B1, B2, B3, and B5, B9, and B12. How many vitamins are there in your brain? I'm trying to see.
Can I see how many vitamins are there in your brain? कमाल है ये बच्चा, सारे विटामिन्स पता है इनको, और इन्होंने किताब लिख डाली है कि हैरी पॉटर विटामिन्स खाकर कैसे होर्क्रक्सेस को तोड़ते थे, उनको नष्ट करते थे, वो भी 6 साल की उम्र में इन्होंने किया है। What is your IQ? 180. ऋषि का IQ तो 180 का है, यानी ऋषि करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों में एक है। कैसा लगा था तब जब इनको पता लगा, इनके परिवार को पता लगा? ऋषि से तो पूछेंगे ही, आइए उनके माता पिता से भी पूछते हैं। आज उनकी मदर आई हैं यहाँ पर। Shall we call your mama? Sure. So call out to her. Amma. Is she going to come? आइए रेशु जी आइए, प्लीज कम। Now tell me one thing, who's smarter, you or your mama? I don't know. What is your IQ? 180. What is your mama's IQ? 181. Yes. Your IQ is 180 and your mama's IQ is 181. Because of genetics. Because of genetics. Because of genetics only I am smart. What is genetics? Genetics is like when mom gives birth, she passes her own behavior to her son. So her son behaves like her. That is Maska. But let me ask you, Rishi, when did you know? आपको कब पता लगा कि आपका बच्चा थोड़ा खास है, जीनियस है? एक्चुअली फराज जब वो 2 साल का था तभी उन्होंने पढ़ाई शुरू कर लिया, जैसे छोटा छोटा स्टोरीज वगैरह पढ़ना, छोटा छोटा बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। 2 साल की उम्र में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था? यस, इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया। ही यूज्ड टू रीड। शब्द जोड़ के पढ़ रहा था 2 साल के उम्र? यस, वेरी क्लियरली। फ्रॉम देयर यस वी डिड फील दैट इट्स वेरी स्पेशल। एंड जब वो 3 साल का था तो उसका इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, क्लाउड, we were more surprised to understand, like how he is getting into all these interests. And he used to narrate also. When we heard from his teacher, head of the school, she insisted us, I have seen a special behavior in him, so why don't you please get an IQ test done? So they referred and we got his IQ test done in Bangalore, and we were really shocked and surprised to see 180. And doctors was also very surprised to say. In fact, she said, why don't you put a full stop to your career and focus on shaping up his future? He's a nation asset. वैसे बच्चों में एक आम बात होती है कि kids have a very short attention span. हर चीज से बहुत जल्दी दिल भर जाता है। तो let me ask you this, ये कैसे फोकस कर पाते हैं? ऋषि को एक्चुअली पढ़ाई में तो बहुत मजा आता है। अगर लर्निंग में कुछ फन हो तो बच्चे लोग अपने आप वहीं पे मजे ढूंढ लेते हैं। इनके लिए लर्निंग ही फन है। यस जी हाँ, बात तो बहुत सही है। मस्ती में सीखने की बात ही कुछ और है। अब आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई को मजेदार बना सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप। ये ऐप खास किंडरगार्टन से 3री क्लास तक के बच्चों के लिए है। इसमें इंटरैक्टिव वीडियोस, लर्निंग गेम्स और मैजिकल वर्कशीट्स हैं, जिनकी मदद से बच्चे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स अपने पेस पर बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, वो भी अमेजिंग डिज्नी स्टोरीज और कैरेक्टर्स की मदद से। तो अभी से डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को मजेदार बना दीजिए। आई हैव टू थैंक यू फॉर A, giving India a genius like him, and B, for the effort that you're taking him, and C, for joining us on Byju's Young Genius. Thank you very, very much. It's our privilege. Thank you so much. Tell her I'll see you later. Bye. Oh, so you can hug and kiss your mama, but you can't give me a kiss. Rishi, let's now talk about coding. Yes. My favorite. It's your favorite? Yes. When did you learn coding? I learned coding when I was 5 years old. That's just 1 year ago. Yes. And how many apps have you coded so far? Major apps are 3. 3? Yes. Which are the 3 apps? IQ Test app, Code Help Bangalore, and Countries of the World app. Countries of the World app. And you designed this entire app yourself? Yes. सच में यंग जीनियस है ये। और इस यंग जीनियस की इस छोटी सी उम्र में बड़े बड़े गोल्स जो इन्होंने अचीव कर लिए हैं। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उन्होंने भी कई सारे गोल्स किए हैं, लेकिन एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी स्टिक के साथ भारत के लिए। हम मिलेंगे उनसे एक छोट। अब तक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि ये क्यूट ज्यादा है या जीनियस ज्यादा। अब जो हमारे साथ मेहमान आ रहे हैं ये है यंगेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, अर्जुना अवार्ड विजेता, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित। प्लीज वेलकम पद्मश्री सरदार सिंह। बहुत बहुत अच्छा लगा
देखिए ये है ऋषि शिव प्रसन्न, वो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, नहीं वो नमस्ते करेंगे। नमस्कार, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. How are आइए you? बैठिए। थैंक यू। सरदार सिंह बायजूस यंग जीनियस की जूरी के भी मेंबर हैं, इसीलिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है हमारे लिए कि आज आप हमारे साथ हैं। डू यू प्ले हॉकी? डू यू प्ले एनी स्पोर्ट? I play football and cricket. I've already played hockey once before. What did you do? With hockey stick, I hit the ball round the house. नंद भाई नेक्स्ट टाइम पक्का, क्योंकि हमारे सारे कैंप बेंगलोर में है ना, हाँ। तो पक्का इंट्रोड्यूस करवाएंगे सभी प्लेयर्स के साथ ऋषि को। You want to see the team play hockey on the real hockey ground? Would you want to go and see it? Yes. Yes? Yes. Shall we play a game? Sure. Can I ask you a few questions? Sure. I can jump if Yes. I stand up Yes. on the earth and I can jump 3 feet. But somebody tells me that if I were to jump on the moon, You can jump more than 3 feet on the moon. why? Because of gravity. It is considered the more the mass, the higher the gravity. The higher the gravity, the more harder it becomes to jump. Gravity pushes you down. Gravity pushes you down. So if Rishi Shiv Prasanna is 15 kilos on earth, will he be lighter on the moon? Yes. That means we all should go to the moon because we would be so happy looking at our weighing scales, है ना? अपना वजन देखने में But कितना there will मजा be आता no है। oxygen on the moon. Oh. So if 7 billion people go to the moon, Who's asking for 7 billion people to go to the moon? I am just saying कि मैं, आप और सरदार सिंह चले जाएंगे, है ना? And we'll play hockey on the moon. but then the hockey will fly away into outer space. Now tell me, what are vaccines? A vaccine injects a smaller or weaker version of a virus into your body. Body. Which alerts the immune system to gather all the information it can find and create an antibody. So when the strong virus will come, they won't waste any time creating an antibody. They will send it out straight away so it can fight the virus. गुरुदेव ऋषि शिव प्रसन्ना, जय हो, जय हो। Alright, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सृष्टि में कितने तरह के ग्रीन कलर हैं, यानी कि हरे रंग के कितने शेड्स हमको नेचर में मिलते हैं? आपको पता है? 4-5 तरह के। 4-5? हाँ। 10? How many shades of green are there in nature? 255. 255 अलग अलग शेड्स हैं ग्रीन के। अच्छा, Nature. एक ही ट्री में जैसे वो एक ट्री में, no, in one tree how many shades are there? In one tree, 5 to 6 shades. वो आप सही बोले, बिल्कुल। सरदार सिंह भी तो जीत। अरे वाह, वेल डन, वेरी वेरी वेल डन ऋषि। वाकई इस यंग जीनियस से मैं तो हैरान, पर हैरान होने के साथ साथ हम सबको ऋषि पर बहुत गर्व भी है, और उसी प्राइड की निशानी के तौर पर हम आपको कुछ देना चाहेंगे। फर्स्ट, दिस इज द ट्रॉफी ऋषि शिव पी gets the Byju's Young Genius Trophy. Keep it down. तो ऋषि को मिलता है डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न किट और उसके साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन ऑन द ऐप। वाह! Thank you so much. I'm going to hold the trophy for you. Come. Thank you so much. Thank you so much, ऋषि। हमारे आज के दूसरे यंग जीनियस से जब कोई पूछता है कि वो जीनियस क्यों है, तो वो सीधा गोली चला देते हैं। Because he is the youngest national shooting champion. सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने अंडर 18 और अंडर 21 दोनों चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, और 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी यंगेस्ट चैंपियन ही बने हैं। ये हैं आज के हमारे दूसरे यंग जीनियस, 12 साल के अभिनव शॉ। मेरा नाम है अभिनव शॉ, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मैं 8 साल का था तब मैं राइफल शूटिंग स्पोर्ट्स में इंटर किया, और इनिशियली मैंने पापा के अंडर ही ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इन द 62nd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप आई वॉन 2 गोल्ड मेडल इन द यूथ एंड जूनियर कैटेगरी हेल्ड एट त्रिवेंद्रम इन 2018, और तभी मैं यंगेस्ट नेशनल शूटिंग चैंपियन बना। जैसे उसका कहीं मैच रहे या प्रैक्टिस रहे तो मैं वहाँ उसको मैच में मैं लेकर जाती हूँ। जब जीतता है तो मेरी फीलिंग अलग ही रहती है। पहले मैं जितना नर्वस रहती हूँ, बाद में मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूँ और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था
इंडिया के लिए 2008 में। नमस्ते, आई हैव टू फर्स्ट से कंग्रेचुलेशंस। इनको आप जानते हैं? यस। सरदार सिंह, आइए बैठिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ जी एक बात है पाजी, हमें आपको कभी पता नहीं होता कि हमने क्या करना था। जी मैं टीवी शो होस्ट या एग्जीक्यूटिव एडिटर बनूंगा, जी। आप नेशनल टीम के कप्तान बनेंगे, जी कौन नहीं। फाइटर है कौन राइटर है कुछ पता कुछ नहीं होता। था। जी लेकिन इनका तो तय ही था तय था। कि ये क्या बनेंगे। जी। इसकी स्टोरी क्या है अभिनव? मेरे पापा का ड्रीम था पहले से कि सन को शूटिंग में ही देना है, तो जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। उस अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता शूटिंग में, तो ये अभिनव शॉ भी जीतेगा, बनेगा, शूटर बनेगा। यस पर लेकिन अब एक बात बताइए, ये आपके पापा का ही सपना है कि अब आपका भी सपना है? सर, पहले पापा का था पर अब मेरा भी हो गया है। अब आपका भी हो गया है। आपके पापा क्या करते थे? सर वो होम ट्यूटर है, घर जा जाके सबको ट्यूशन पढ़ाते हैं सर। पर उनको शूटिंग का शौक था? ये सर वो पिस्तौल शूटिंग का उनको शौक था पर वो कर नहीं पाए। कर नहीं पाए। तो फिर जब आपको शूटिंग कब से सिखाया उन्होंने? तो जब मैं 8 साल का था तब हाँ। से उन्होंने मुझे शूटिंग में डाला। पर आसपास बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आपको मन नहीं किया कि यार वो खेलते हैं? नहीं सर, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि शूटिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है सर। हाँ। वो पूरा गेम अपने ऊपर रहता है, आप जैसा खेलोगे आप वैसा ही जीतोगे। हॉकी में तो आपको अगर 11-11 है तो 22 आपको स्टिक चाहिए और एक बॉल चाहिए। जी। फुटबॉल में एक बॉल चाहिए। जी लेकिन शूटिंग में आप बंदे एक हैं लेकिन बुलेट्स बहुत सारे बहुत चाहिए। सारे। सारे चाहिए। पर ये तो यानी महंगा स्पोर्ट है। Yes, कैसे sir. करते थे आप मैनेज? तो पहले पापा ने मुझे वो जो मेले में गन यूज होता था उससे किया, तो कुछ दिन बाद पापा ने मुझे एक सेकेंड हैंड राइफल दिया। फिर कुछ दिन जैसे मतलब परफॉर्मेंस बढ़ता गया तब मैं स्टेट फिर क्वालिफाई किया, फिर वहां से नेशनल जब क्वालिफाई किया वहां मैंने उस गन से मतलब अच्छा स्कोर मारा था। अभिनव, जैसे सर ने पूछा कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो पिस्टल आपका काफी एक्सपेंसिव रहता है। पिस्टल ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है पर राइफल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। अच्छा। तो कैसे आते थे पैसे? मुश्किल होती थी? हाँ सर, बहुत मुश्किल। पापा ज्यादा काम करते थे, हार्डवर्क करते थे, मम्मी काम बहुत करते बहुत बहुत। आपके साथ भी ऐसे ही था? बिल्कुल पाजी, सेम। और हमारा तो जो घर से ग्राउंड था आई थिंक 2 किलोमीटर था पाजी। हाँ। और हम तो कभी कोई ट्राली स्कूटर निकलता था, गांव वाला कोई जाता था हाथ दे के, तो जब उधर से वापस आना स्कूल जैसे ही खत्म होता था तो रनिंग करके वापस आए ना, तो इस चीजों की सारी सिचुएशन, क्योंकि भाई हॉकी भी अभी हमारी एक एक्सपेंसिव गेम है। हाँ। आपको पता है सबसे टफेस्ट क्या है शूटिंग में? शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन। क्योंकि लेट के एकदम अपने आप को स्टडी और वो रखना। राइफल भी बहुत भारी रहता है राइफल भी बहुत भारी रहता है, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है। क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग वह अभी वही कहने वाला था। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो। 5 किलो का राइफल है। तो 1 घंटे में कितनी बार आप 5 किलो का वजन राइफल उठाते हैं, रखते हैं? 80 टाइम्स। 80 टाइम्स। ये बच्चा 12 साल की उम्र में 5 किलो का राइफल 80 बार एक ट्रेनिंग सेशन में, एक राउंड में करता है 1 घंटे में। और इसीलिए ये अभी खेलो इंडिया में गोल्ड जीता 2019 में। आज खेल जगत के 2 बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हमारे साथ हैं यहां बायजूस यंग जीनियस में, और अब इस मंच पर कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, कुछ स्पेशल, क्योंकि आपके लिए हम भी तो कुछ करेंगे अभिनव। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए, जहां इस वक्त मेरे साथ है यंगेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, नेशनल टीम, और द यंगेस्ट नेशनल शूटिंग चैंपियन। अभिनव कहते हैं ख्वाब देखते रहने चाहिए। यस आपका ड्रीम क्या है? सर, ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल लाना। 2 गोल्ड मेडल लाने हैं ना। तो हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो ओलंपिक्स तक भी गए हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल भी जीता है। एक यहाँ आपके साथ बैठे हैं। अभी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या सर? देखिए कौन आया आपके साथ यहाँ पर बायजूस यंग जीनियस पे, द वन एंड ओनली। कौन है ये? सर गगन नारंग। गगन नारंग। हाय सर। हाय अभिनव, हाउ आर यू? बहुत अच्छा सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये 2012 के ओलंपिक मेडलिस्ट, राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित, 2006 और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाले पद्मश्री गगन नारंग है। एक बात बताइए गगन, एक शूटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आई थिंक जब हमने शूटिंग स्टार्ट करी तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था राइफल के लिए, और जब वो राइफल हमें मिलती थी तो हम वी वर ऑन क्लाउड 9। तो मैं वो राइफल के साथ रोज रात को सोता था बेड पे रख के, क्योंकि इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एंड लाइट्स ऑफ करके ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना, जो भी चेंजेस राइफल में आप करते थे तो आंखें बंद करके उसको फील करना कि भाई कौन सा चेंज कहाँ हुआ है, ट्रिगर कितना सॉफ्ट है, और अगर आपने जिस ट्रिगर की सेटिंग्स चेंज करी हैं
तो वो सेटिंग्स आपको मेमोराइज करने के लिए अगले दिन ट्रेनिंग में आप एक रात पहले उसके साथ बैठते थे और उसको मेमोराइज करते थे लाइट्स ऑफ करके, सो दैट योर सेंसेस मेक यू अवेयर ऑफ द ट्रिगर प्रेशर एंड द सेटिंग्स ऑफ द ट्रिगर। मेरा जो ट्रिगर का सेटिंग है, अगर वो चेंज होता है ना तो मुझे वो ट्रिगर ना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट टाइम आपको सेट करना हो तो आप लाइट ऑफ कर देना कमरे में और सिर्फ ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना। यस। तो जब आपकी बाकी इंद्रिय शक्तियां जो बंद हो जाती हैं, so you're only focusing on your trigger finger and your rifle. यस। So then you can adapt to the new settings much faster. अच्छी टिप है ना? हाँ अगली बार से लाइट्स ऑफ, ट्रिगर ऑन। हाँ। मैं पढ़ रहा था कि इनकी राइफल लेने में इनको काफी कठिनाइयां हुई हैं, तो अभिनव जब भी राइफल की जरूरत हो, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल। थैंक यू सर। गगन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े। थैंक यू सर। बायजूस यंग जीनियस में आपने अभिनव को बहुत सारी टिप्स दी, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा लगता है वो तिरंगा जब लहराता है और पोडियम में मेडल हमारा? बिल्कुल बाजी, जब आप स्पेशली नेशनल कलर जर्सी पहनते हैं और जब आप किसी कंट्री में जाके अच्छे इवेंट्स में मेडल जीतते हैं और उसके बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग ऊपर जाता है, तो वो सारी प्राइजलेस चीजें हैं। आपको भी चाहिए वो मोमेंट? हाँ हाँ, आप मेहनत करेंगे। अच्छा बहुत। लगा इतने सारे लोगों से बात कर, बहुत अच्छा लगा, बहुत। उनसे सीख कर। हाँ बहुत। यहाँ आज बायजूस यंग जीनियस पर जाते जाते एक खास तोहफा आपके लिए। थैंक यू सर। कम। सबसे पहले बायजूस की तरफ से आपके लिए बायजूस यंग जीनियस ट्रॉफी अभिनव शॉ लिखा है, थैंक यू सर वेरी मच। और अभिनव को साथ ही मिलता है बायजूस किट और 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। सरदार पाजी, अभिनव शॉ, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। हमें यकीन है कि जैसे एक अभिनव बिंद्रा से इंस्पायर होकर अभिनव शॉ यहां तक आया है, कल इससे इंस्पायर होकर और भी अभिनव आगे आएंगे, क्योंकि यही तो इस मंच का मकसद है, यंग जीनियसेस का उत्साह बढ़ाना और देश के कई और बच्चों को प्रेरित करना। और ये काम हम फिर से करेंगे अगले हफ्ते कुछ और यंग जीनियसेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।